Hello everyone. In today's class, we will discuss about motion in a straight line. The motion along a straight line is the simplest type of motion. So we will discuss that. Consider an object which is moving along a straight line starting from the point O. So we will take this point O as a reference point, right? This point O is the reference point and the object covers distance from O to A. First it moves from O to C, that is it covers 25 kilometers. Then it goes to the B point, it covers 35 kilometers in total. Then the object will move to the point A. So what will be the total distance? Okay. Then the object will move to the point A. Then the object will move from this point A to the point C. Point to be noted that the object starts its motion from the point O. First it moves from O to C. So OC, the distance between O to C is 25 kilometers. First it covers 25 kilometers. Then it goes to point B, which is 35 kilometers from the point O, right? So OB is the 35 kilometer that the object covers. Then it goes to the point A by covering the 60 kilometer the distance. So OA is equals to the 60 kilometer. Here I am measuring all the distances from the starting point, from the origin, which is our reference point, point O. So OA is equal to 60 kilometer. Now it comes back to the point C. It moves from point A to point C. So how much distance it covers? AC is equals to the 35 kilometer. So total distance that it covers from point O to point A, total path, how much path the object A has covered? Basically it has covered, total path was OA plus AC, that means 60 plus 35, 85 kilometers. This total path which is covered by the object, कि पहले वो O से A पॉइंट पे पहुंचा which was 60 kilometers, ठीक है ना? नो मैटर्स वो बीच में C पर भी गया, B पर भी गया, बट अभी हम बात करें O से लेके A की, कि वो O से A तक पहुंचा which was of 60 kilometer, then फिर वो A से C तक पहुंचा. The final position is C. Initial starting point is A. Now finally it reaches to the point C. तो A से जब वो C पर पहुंचा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? We will do 60 minus 25. A to C के बीच का डिस्टेंस कितना है? 35 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस from O to A and then A to C, total path that it has covered, it is 60 plus 35, that is 85 kilometer. Right? So this is the distance, the total path covered by an object. This is what we call the distance. This is what we call distance. Right? Now, what else if the object reaches to the starting point again? अगर ये object A से C के बजाय A से डायरेक्ट O पॉइंट पर आ जाए तो क्या होगा? In that case जो total path होगा ये O से A पर आ गया, मतलब वो O से पहले यहाँ तक गया A पॉइंट पे, फिर A पॉइंट से वापस वो O पर पहुंच गया, तो अब क्या होगा? OA प्लस AO, तो टोटल उसने कितना कवर किया? जाने में पहले 60 किलोमीटर लगाए, ठीक है, फिर A से वापस O तक आने में उसने 60 किलोमीटर लगाए, टोटल इट कवर्स 120 किलोमीटर. तो ये तो बात होगी टोटल डिस्टेंस की, टोटल चलने की, वो किसने कितना पाथ ट्रेवल किया. तो टोटल पाथ की जब हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, द टोटल path. Okay. So here we see that to describe the distance
we need only the numerical value of the distance and not the direction. We don't need to specify the direction. So the numerical value of a physical quantity is its magnitude. So the distance has only magnitude. It has only a numerical value. Now here is one more term that is called the displacement. The shortest path taken by an object. As we have seen in the first case, the object moved from point A to the point C. जब वो point C पर आ गया तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो कि C है उसके बीच का. अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ देखोगे O से लेके C के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला शॉर्टेस्ट है आपके लिए, द शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट ही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट. तो जितना पाथ वापस आया दैट वी विल माइनस. ठीक है, पहले वो O से A पर गया, ठीक है, फिर वापिस आया A से वापिस C पर आया, तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. OA दैट इज 60 माइनस 35, what will we get, only 25 किलोमीटर्स. तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आया है आपके पास O से C के बीच का, दिस इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट. Is the shortest path. Distance is the total path taken by an object, and displacement is the shortest path taken by an object. अब ये जो displacement है, it can be zero. ये zero भी हो सकती है. As in our second case, जो object है वो वापिस अपने initial position पे पहुंच गया है, वो A से वापिस O पर आया है, तो उस केस में डिस्टेंस तो उसने हमने ऐड अप कर दिया था 60 + 60. लेकिन हम शॉर्टेस्ट की बात करते हैं. शॉर्टेस्ट में आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना होता है कि इनिशियल उसने O से स्टार्ट किया था तो वापस वो O पर ही पहुंच गया है. तो यहाँ पे आप डिफरेंस तो ले नहीं सकते हो किसी चीज का. इनिशियल माइनस फाइनल, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, कि वो उसने O से चलना स्टार्ट किया वापस O पर ही पहुंच गया. तो शॉर्टेस्ट क्या बचा, कुछ भी नहीं. ठीक है, तो इफ इट रीचेस टू इट्स इनिशियल पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं. विल गिव यू अनदर एग्जांपल आल्सो. सपोज वी हैव 3 पॉइंट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट ने इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया. फर्स्ट इट गोज टू द पॉइंट बी. ए से बी का डिस्टेंस मान लेते हैं 10 किलोमीटर से. ठीक है, देन वो बी से सी पॉइंट पे गया, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है व्हाट विल बी दिस, डिस्टेंस विल बी AB प्लस BC दैट इज 10 + 15 which is equal to 25 kilometer, right? And what will be the displacement in this case? Displacement is the shortest path. मतलब उसने A से स्टार्ट किया और फाइनल वो C के पहुंच गया. तो A से C के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, A से C के बीच में जो पाथ लेंथ है मान लेते हैं इट इज 10 किलोमीटर्स. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास यहाँ पे A to C दैट इज 10 किलोमीटर. तो जो C तक पहुंचने से लंबा रास्ता लिया है, तो पहले वो B पे गया 10 किलोमीटर चल के, फिर वो B से C तक आया जो कि 15 किलोमीटर था. वो छोटे भी ले सकता था, वो शॉर्टकट भी ले सकता था. एक शॉर्टेस्ट पाथ था 10 किलोमीटर से, वो उसे भी कवर अप कर सकता था. दिस इज व्हाट कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट इज. लेकिन अगर इसी को हम कुछ ऐसे देखें कि पहले वो A से B पर गया, B से C पर गया, फिर वापस वो C से A पर ही आ गया, मतलब वो C से A पर आ गया. तो अब इस केस में क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस विल बी A to B प्लस B to C देन C to A. मीन्स उसने A से स्टार्ट किया था, वो वापस A पर ही पहुंच गया है. तो टोटल डिस्टेंस विल बी 10 + 15 + 10 दैट विल बी 35 किलोमीटर्स. तो
डिस्टेंस क्या होगा, टोटल करना सबका। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से चलना स्टार्ट किया था, वापस वो ए पर ही पहुंच गया है, व्हाट विल बी माइनस, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट आप किस चीज तक पहुंचने का लोगे, तो कुछ है ही नहीं, तो फाइनल पोजीशन आपकी इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड करती है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल जीरो, ठीक है। इसी तरीके से सपोज आपने कोई सर्कुलर ट्रैक लिया है, कोई एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, राइट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ए। तो अगर आप डिस्टेंस देखना चाहो कि उसने एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, मान लेते हैं उसका जो एक राउंड है वो 10 किलोमीटर का है, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा 10 किलोमीटर, कि वो उसने ए से चलना स्टार्ट किया और फिनिश वापस वो ए पर पहुंच गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वो वापस अपने पॉइंट पर पहुंच गया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी जीरो। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। लेट अस राइट दीज पॉइंट्स। Distance, and we can also write the difference between them. Displacement. So what is the difference between distance and displacement? First of all, we will write the definitions. Distance, the total path and displacement is the shortest path. The short distance cannot be zero, but displacement can be zero. Okay. Next one is, as I had told you, distance involves only numerical value. It has only magnitude, so it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, but this displacement has the magnitude as well as direction. किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन क्या डायरेक्शन रही है आपकी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, लास्ट वन इज डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। Always positive, but this displacement can be positive as well as negative depending upon the reference point, depending upon the initial and final positions. It can be positive or नेगेटिव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि आप घर से चल दिए, आपने पूरा मार्केट भी घूम लिया और फिर आप यही कह दो कि मैं तो कुछ घूमा ही नहीं हूँ, मैं कुछ चला ही नहीं हूँ। कुछ तो चले हो, तो वो क्या है आपके पास डिस्टेंस है, जितना भी चले हो तो वो कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। आपको ये भी पता है कि आपके मार्केट किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। So this is all for today. Stay home, stay safe, stay healthy. Let's meet you in the next lecture.